آپ حضرت مولانا قاری زکریا صاحب کی تلاوت کو سماعت فرما رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے، اور اس قدر خوشبو اور کتنا حسین انداز میں پڑھنے کا کہ ہمارے دل یہی کہہ رہے تھے کہ حضرت قاری صاحب تلاوت کرتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، اور کیوں نہ ہو یہ قرآن کریم ہے ہی اتنی عظیم الشان کتاب کہ جو امت مسلمہ کی روح ہے، تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو سب کو شفا دیتی ہے۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ساری انسانیت کے لیے اور ساری دنیا کے لیے، جس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ میں بڑا مشکور ہوں جناب قاری زکریا صاحب کا کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اپنی تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز فرمایا۔ حاضرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نازک دور ہے اور جس سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے حالات سے پوری امت مسلمہ دو چار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور جس کا سلسلہ ختم ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوا، تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ چنانچہ آپ دیکھتے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا عجیب و غریب معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کسی نابینا شخص کو لایا جاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے حکم سے اس کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ وہ نابینا بالکل اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی کوڑ کا مریض ہوتا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا تو اللہ نے ایسا عجیب و غریب معجزہ حضرت عیسیٰ کو عنایت فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کوڑ کے مریض کو دور فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عجیب و غریب معجزہ حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی فریاد کرتا یا کوئی اس طرح جستجو میں ہوتا فوراً زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح بن جاتی اسی لاٹھی کو اگر کسی پتھر پر مارتے تو اس پتھر سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ اسی لاٹھی کو اگر سمندر کے پاس کسی دریا کے پاس ڈال دیتے تو فوراً بارہ خشک راستے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ جائیے اس کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے کہ جب تک کہ آپ اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نہیں نکال دیں، اس وقت تک ہم آپ کو نبی تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، فوراً اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک پابند اونٹنی اس پہاڑی سے نکالی، اور اس وقت بھی وہ ظالم اور شیطان صفت درندے اس وقت بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جادوگر ہیں اس لیے آپ نے اس پہاڑی سے اونٹنی کو نکالا ہے۔ آپ اس کے وقت جائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے تھے۔ آپ اس سے اوپر چلے جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मुअजिज़ा अता फरमाया था वो ये था कि जालिमों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, वो आग फौरन गुले गुलजार बन गई। आप उससे उतर जाइए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में जब सारी दुनिया के अंदर तूफान बरपा था, सारी दुनिया के अंदर सैलाब आया हुआ था, तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया और कहा कि आप इरकब मअहू, गालिबन कुछ इस तरह की आयत है कि आप अपने लोगों को और अपने ईमान वालों लोगों को लेकर के इस कश्ती में सवार हो जाइए। ये वो मुअजिज़ा था कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुअजिज़ा अता किया गया था। लेकिन आप वापस आइए, इस वक्त के आखिरी नबी और तारीख़ खत्म नबूवत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुअजिज़ात का सिलसिला है वो इतना बड़ा है कि इस मुख्तसर सी मजलिस में हम उन मुअजिज़ात को, उन औसाफ को, उन खिदमात को हम बयान करने से कासिर हैं। हम उन तमाम औसाफ को, उन तमाम मुअजिज़ात को बयान नहीं कर सकते। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की वालिदा फरमाती है कि मेरे पेट में मोहम्मद थे और मैं कुएं के पास पानी लेने जाती, तो उस वक्त जब जैसे ही मैं कुएं की तरफ डोल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती तो डोल मेरी पकड़ में आने से पहले फौरन नीचे जाता और नीचे जाने के बाद पानी से भर करके आता और पानी से भर करके आने के बाद वो खुद ब खुद मेरा जो बर्तन होता उसमें उलेट दिया जाता। ये वो मुअजिज़ा था जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पेट में ही अता किया गया था। आप याद कीजिए हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस दरख्त को आज भी जानता हूँ कि वो दरख्त आपके पास आया और उसने आपको सलाम किया और आपने हुक्म दिया तो वो वापस चला गया। और जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने चंद कंकर और पत्थर लिए हाथ में और फौरन उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आप जाइए इस तरफ कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक प्याला दूध का लाया गया और इस दौरान कि हजरत अबू हुरैरा भूख से बेताब थे। हजरत अबू हुरैरा को अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते हैं कि जितने भी यहाँ सहाबा हैं जिनकी तादाद तकरीबन 300 साढ़े 300 थी, ये प्याला दूध करो और सबको पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात वो जात थी कि जो उस वक्त भूख से बेताब थी, जो उस वक्त भूख से तड़प रहे थे, सिसक रहे थे और फौरन उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। एक प्याला दूध ही को मुझे नजर आया था ताकि मैं इसको पीकर अपने आप को सैराब करता, अपना पेट भरता, मगर अल्लाह के पैगंबर का हुक्म है कि ऐ अबू हुरैरा तमाम सहाबा को और तमाम अपने साथियों को ये प्याला दूध का पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा ने पिलाना शुरू किया, सबको पिलाया, वो प्याला खाली नहीं हुआ। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अबू हुरैरा पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने पिया। अल्लाह के पैगंबर फिर फरमाते हैं पियो। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि मैंने खूब किया, इतना पिया कि मैं बिल्कुल सैराब हो गया। अब मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब मेरे पेट में गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ठीक है, जब तुमने पेट भर लिया है ये दूध लेकर के जाओ और अपनी जो अम्मा है हजरत आयशा जो उम्महातुल मोमिनीन है उनके पास लेकर के जाओ, क्योंकि तुम्हारी तरह वो भी अभी दूध से है। ये वो मुअजिज़ा था जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया था। मैंने आज ये गालिबन मिसाल दी थी कि रज़ाई अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन थी, वो बकरियों को चराने जाया करती थी, साथ में भेड़ भी हुआ करती थी, वो जंगल में चराने जाया करती थी। वो रज़ाई बहन बयान करती हैं, वो फरमाती हैं कि जब मैं बकरियों और भेड़ों को चराने जाया करती थी तो हाल ये होता था एक बकरी इधर दौड़ती थी, एक बकरी इधर भागती थी। मैं सोचता था कि इसको पकड़ लूं, मैं सोचती थी इसको पकड़ लूं, अब उसके पीछे अब इसके पीछे, और शाम तक मैं थक कर निढाल हो जाया करती थी, मगर वो बकरियां और वो भेड़ मेरी गिरफ्त में नहीं आया करती थी। एक दिन मैंने सोचा, वो बयान करती है कि जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 4 से 5 साल है कि हजरत खलीफा दूध पिलाती है
अलैहिस्सलाम की है। उन्होंने वो फरमाती हैं कि मैंने इरादा किया कि मैं मोहम्मद को अपने भाई को साथ में लेकर के जाऊं। जब मैं अपने मोहम्मद को अपने भाई को साथ में लेकर के गई तो उस दिन ये वाक़या पेश नहीं आया कि बकरियां इधर भेड़ इधर तो उधर। फरमाती हैं कि जब मेरे भाई मेरे साथ थे तो जंगल में चल गए तो सारी बकरियां एक जगह इकट्ठी हो गई, सारी भेड़ एक जगह इकट्ठी हो गई, सारे परिंदे एक जगह इकट्ठे हो गए, सारे परिंदे एक जगह इकट्ठे हो गए। हज़रत की रज़ाई बहन फरमाती हैं कि वो ऐसा माहौल था कि मैं अपनी आंखों से ऐसा अजीब गरीब नजारा मैंने देखा जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को सारी बकरियां देख रही हैं, सारी भेड़ अपनी आंखों से यूं देख रही हैं, सारे परिंदे अपनी आंखों से यूं देख रहे हैं, सारे परिंदे अपनी आंखों से अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को यूं देख रहे हैं। ये वो पैगंबर थे कि जिनसे सहाबा मोहब्बत फरमाया करते थे, ये वो पैगंबर थे कि जिनसे जानवर की मोहब्बत फरमाया करते थे। मैंने वाक़या सुनाया था कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो आपका एक घोड़ा एक गधा था। उस गधे को जैसे इल्म हुआ कि अब मेरे मालिक मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वफात हो गई है और वो इंतकाल फरमा चुके हैं, तो वो फौरन गधा चीखता हुआ चिल्लाता हुआ जंगल की तरफ दौड़ा और दौड़ते वो हलाक हो गया, वो मर गया। और उसने यही दुआएं की कि जब मेरा मालिक नहीं रहा तो मैं इस दुनिया में क्यों जिंदा रहूं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से ये आसमान मोहब्बत किया करता था, ये जमीन मोहब्बत किया करती थी, ये हवाएं, ये फिजाएं, वो सहाबा, वो सितारे और तमाम जानवर और जितने भी अवसाफ रखने वाले चीजें हो सकती थी वो सारी की सारी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमाया करती थी। मेरे भाई आज वो दौर है कि जब जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि ऐ नबी हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। ये नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल मुमिनीन अब लिल मुस्लिमीन, ये नहीं फरमाया कि मुसलमानों के लिए रहमत बना करके भेजा है, बल्कि फरमाया कि सारी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। मेरे भाई आज वो दौर और वो ज़माना है कि कोई भी कमी न उठता है कि जो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान को बताता है। कोई भी दरिंदा उठता है कि जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गाली बकता है। कोई भी कमी न उठता है कि जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को मजरूह करता है, कि जो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है। ये वो दौर है मेरे भाई कि जिसमें हम जी रहे हैं। याद रखें अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की जात वो जात है कि मेरी जान उन पर कुर्बान हो, मेरी औलाद उन पर कुर्बान हो, मेरी माँ उन पर कुर्बान हो, मेरे वालिद आप पर कुर्बान हो। सबसे पहली शख्सियत अगर कोई है वो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की है। सारी चीजें बाद में हैं, मैं बाद में हूँ, मेरी औलाद बाद में है और मेरी नस्ल बाद में है, मेरी माँ और बाप बाद में है। याद रखें मेरा पूरा खानदान और ये दुनिया वाले सारे के सारे बाद में हैं। अगर सबसे पहले कोई जात हमारे दिलों के करीब है तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के करीब है। मेरे भाई इस वक्त जरूरत है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की तालीमात पढ़ने की, इस वक्त जरूरत है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की तालीमात हासिल करने की, इस वक्त जरूरत है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत पाक का मुताला करने की, इस वक्त जरूरत है अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी अमल में लाने की। आप देखें कि मेरे नबी की जिंदगी कहाँ है और मेरी जिंदगी कहाँ है, मेरे नबी के आमाल कैसे थे और मेरे आमाल कैसे हैं। याद रखें मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त है अगर तो वह है कि हम अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की जात को पहचाने। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त के काफिरों को देखता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये लोग वो हैं कि अल्लाह के पैगंबर को मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते हैं कि जैसे लोग अपने बेटों को, अपनी नस्लों को, अपने माँ और बाप को, अपने खानदान वाले को पहचानते हैं, ऐसे ही लोग मोहम्मद को
زندگی گزار رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے یا کم از کم اپنے علماء سے سنیں گے انشاءاللہ. اس وقت چونکہ جو ہماری کڑی ہے میری اگر باہر جو علماء ہیں حضرت مولانا جواد صاحب ہیں مفتی جواد صاحب وہ اندر تشریف لے آئے کے ذیل میں ہم سب کے ساتھ ان کے استاد کو بیان